Magnetic field is a vector quantity, rather, it's the intensity. We have to know the magnitude as well as direction. Main thing is that how you are going to find the direction of the magnetic field intensity. That is very important. The sources of the magnetic field, magnet and the current carrying wire. If the magnet is there, how we are going to find the direction of the magnetic field intensity? Say we have taken the one bar magnet. हम लोग क्या लिए हैं? एक बार मैग्नेट लिए हैं. अब बार मैग्नेट में ये क्या है? फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emits from north and enter to the south, but all these lines never intersect each other, and the direction of the magnetic field lines is from north to south, but inside the volume of the magnet it is south to north. Now, if I'm going to find the direction of the magnetic field intensity at any point of its surrounding, say here, one point A is there, here one another point B is there. I have to find the direction of the magnetic field intensity. What I have to do? I have to draw a tangent. A पर हम लोग क्या करना है? Tangent हम draw कर देंगे. That is the direction of the magnetic field intensity at this particular point. But along the sequence or the arrow, you can say, and from here, if I am going to find the direction of the magnetic field intensity, I have to draw a tangent, not in this direction, but rather in this direction, along the sequence, along the arrow. That is the magnetic field intensity. Second source is that current carrying conductor. Say the straight wire carrying current is there. एक straight wire है, ऐसे एक straight wire लिए करंट कैरिंग कंडक्टर है. अब हमको करना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों ओर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड होगा. Magnetic field. Now, in which direction the direction of the magnetic field will be there? To find this, we have to use the right hand thumb rule. Thumb rule. ये समझना है. मान लेते हैं ये एक करंट कैरिंग वायर है. सबसे पहले क्या करेंगे? आई एम गोइंग टू होल्ड इट इन सच ए मैनर that thumb indicate the direction of the current ऐसे जा रहा है along the tip. ठीक है. Then curl of the finger shows the direction of the magnetic field intensity. ये magnetic field का direction show करेगा. Curl of the finger. अगर current ऐसे जाता तो हम ऐसे करते. ये direction that is indicating the direction of the magnetic field lines or magnetic field intensity. So that is the, for example, in the diagram part, current carrying conductor is there. This is the direction of the current. Then if I am going to hold it like that, ये इसका क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये ऐसे से कॉन्सेंट्रिक, ये यहाँ पर इसके चारों ओर होगा. अगर ये मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इस तरफ नीचे की ओर, तो हम लोग को क्या करना होगा? I am going to hold the wire in this manner. Then the direction of the magnetic field lines is the clockwise. Okay. अब ये वायर के सराउंडिंग में या इसके से कुछ दूर पर मान लेते हैं पॉइंट P है. R डिस्टेंस पर, R इसका पोजीशन वेक्टर है. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? हम लोग को बायट-सवार्ट्स लॉ का यूज़ करना है. μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले. राइट हैंड पाम रूल, ये इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सर्कुलर कॉयल. ये सर्कुलर कॉयल है, इसका डायरेक्शन हम देख रहे हैं क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो हम कैसे निकालें कि डायरेक्शन ऑफ द करंट. ना अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? उसके लिए देखिए राइट हैंड थंब रूल. इफ़ आई एम गोइंग टू होल्ड इट, द डायरेक्शन, योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऐसे. तो मेरा फिंगर का जो कर्वेचर है, कर्ल है, वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द क्या? मैग्नेटिक फील्ड को. यहाँ ये नीचे से ऊपर की ओर. अब यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस दिखा सकते हैं ऐसे. यहाँ पर भी करंट का ये डायरेक्शन है, हम ऐसे होल्ड किए ऐसे. तो हम क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है फ्रॉम ऐसे, इस तरह से डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का.
ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज थोड़ा सा अलग पॉइंट कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं इसके सेंटर पर, यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर, अब इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा वो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा इसके सेंटर पर। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक दूसरा रूल भी है जो हम लोग को देखना होगा, वो अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है। वो रूल क्या है, द सेकेंड रूल एक बार और देख लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वहाँ हम लोग को डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सुविधा होगी। जैसे बायट-सवार्ट्स लॉ में वहाँ बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या आया था आपको याद होगा, आई डी एल क्रॉस आर वेक्टोरियल फॉर्म बाई आर क्यूब। क्रॉस प्रोडक्ट डी एल करंट एलिमेंट और आर पोजिशन वेक्टर, ये दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल से। जैसे कैसे निकालेंगे, जैसे ये वाला पार्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में भी पढ़े होगे आप लोग सब। ये मान लेते हैं अगर ए है ये बी है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए क्रॉस बी, हम ऐसे जा रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर या स्क्रू को हम ऐसे मूव करेंगे। कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो स्क्रू ड्राइवर का मूवमेंट किधर होगा, किधर होगा, अंदर की ओर। अंदर तो जिस पॉइंट पर हम ले रहे हैं यहाँ पर ले रहे हैं तो अंदर की ओर मतलब इनसाइड द पेज। तो उसको हम कैसे इंडिकेट करें, क्रॉस करके एन सर्कल। अगर यही वाला चीज़ अगर ऐसे होता, यहाँ पर बी है यहाँ पर ए है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो हमको ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए निकालना है। मान लेते हैं बी क्रॉस ए, अगर हमको कहीं पर ज़रूरत होती है तो बी क्रॉस ए जाएंगे ऐसे। तो स्क्रू को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ये स्क्रू ड्राइवर का मूवमेंट किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर हम कैसे यहाँ पर 2 डायमेंशन में कैसे मेंशन करेंगे, तो जो कंसीडर्ड पॉइंट है वहाँ पर एक पॉइंट देके उसको एनसर्कल कर देंगे, दैट मीन्स अपवर्ड। ये हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया अपवर्ड। इस सर्कुलर कॉयल है जिसका डायरेक्शन हम मेंशन कर दिए, करंट का डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसके सेंटर पर मान लेते हैं ये सेंटर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमको वही मैक्सवेल्स स्क्रू रूल का यूज़ करेंगे। मान लेते हैं ये डीएल है, डीएल का वही डायरेक्शन होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, तो करंट का भी ये डीएल का ही डायरेक्शन है। डीएल से एक ये इस पॉइंट पर हम इसको ज्वाइन कर दिए, ये क्या हुआ, दैट इज़ योर पोजिशन वेक्टर। तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो गया, ये थीटा है, दैट इज़ योर एंगल। अब हम लोग को डायरेक्शन पूछेगा, क्या करेंगे, डीएल का ये डायरेक्शन है, आर का ये डायरेक्शन है, तो डीएल क्रॉस आर हम लोग कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। वी हैव टू मूव इन दिस वे। तो स्क्रू को अगर हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू ड्राइवर का मूवमेंट किधर होगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर ये कंसिडर्ड पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक पॉइंट करके इन सर्कल। मीन्स ये क्या शो कर रहा है, दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अपवर्ड, ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर। अगर यही डायरेक्शन चेंज हो जाता तो डाउनवर्ड हो जाता, लेकिन ख्याल रखना है डीएल क्रॉस आर बायट-सवार्ट्स लॉ का वेक्टोरियल फॉर्म से हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए ये सर्कुलर लूप है, अगर अभी तो हम लोग यहाँ इसको सेंटर पर निकाले, अगर इसके सेंटर पर ये इसका एक्सिस होता है, ये एक्सिस है इसका, एक्सिस पर एक पॉइंट है यहाँ पर, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डीएल वही बायट-सवार्ट्स लॉ का वेक्टोरियल फॉर्म, डीएल का वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन है, डीएल, और ये हो जाएगा क्या, दिस इज योर आर, ये क्या होगा, आर पोजिशन वेक्टर। तो डीएल क्रॉस आर हम लोग ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करने का मतलब क्या है, वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने से स्क्रू ड्राइवर का मूवमेंट किधर होगा, ऊपर की ओर। तो कंसीडर्ड पॉइंट ये है मेरा, यहाँ पर कंसीडर्ड पॉइंट यहाँ पर
ये डायरेक्शन होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और आर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द डायरेक्शन। ये हम लोग इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना हम लोग को मालूम है, कैसे निकालेंगे, तो ये दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट का डायरेक्शन है, सर्कुलर कॉइल है, सेंटर है, रेडियस आर है। हम लोग को मालूम है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू 2π। ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले। अब यहाँ पर ये पूरा के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर हमको इतना मालूम है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है कि आपको सेमी सर्कुलर आर्क है, करंट ऐसे ही जा रहा है आई, इसका सेंटर ये है ओ, रेडियस इसका आर है, तब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr। यहाँ पर हम लोग आगे वाले केस में क्या देखिए, पूरा था दैट इज द 2π, सेंटर पर कितना एंगल बनता है 2π, तो यहाँ पर हाफ है तो क्या बन जाएगा पाई, यही हो जाएगा सिंपल हाफ, क्योंकि हम सेमी सर्कुलर लूप लिए हैं। अगर मान लेते हैं ये ऐसा भी नहीं हो के एक आर्क होता है, छोटा सा आर्क, ऐसा आर्क है जिससे करंट फ्लो कर रहा है आई, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू थीटा, जो एंगल होगा ये हो जाएगा। Another example is that one coil in this way I1 current is there, another coil I2 current is there. At the center you have to find the net magnetic field intensity। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, I1 के चलते इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4πi 2π बाई r, और I2 के लिए भी उतना ही होगा, सिर्फ अंतर क्या होगा कि R और I1 मीन्स करंट एंड रेडियस वेरी करेगा। तो दोनों का डायरेक्शन I1 के चलते और I2 के चलते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, एक ही तरफ होगा। किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ऊपर की ओर। तो दोनों यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन V1 प्लस V2, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड क्वेश्चन में डायरेक्शन अपोजिट है, एक में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक है, दूसरे वाले में एंटी क्लॉक है। ये जो I2 क्लॉकवाइज है और I1 एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर एक के चलते जो I1 है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इधर इस तरफ, और I2 के चलते किधर हो जाएगा, नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर बी नेट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, अब जो तो किस में से दोनों का को माइनस करेंगे, B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1। अब बड़ा कौन सा है कैसे मालूम पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो रेडियस किसका बड़ा है, R2 का बड़ा है, तो इसका मतलब B2 माइनस B1 कर देंगे, निकल जाएगा। अनदर प्रॉब्लम, हियर द 2 कॉइल्स आर देयर। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, क्लास 12 का बोर्ड। ये दोनों इस तरह से कॉइल है, देखिए ये इसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर ये वाला कॉइल का डायरेक्शन ऐसे है। ये दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पर। इसके सेंटर पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ये आप लोग ट्राई करिए। और हम लोग को ये मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है और इसका जो डायरेक्शन है, दोनों वेक्टोरियली सम होगा। उसका नेट निकालने के लिए वेक्टोरियली हम लोग उसका एडिशन करेंगे, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, लेकिन बट इट शुड बी वेक्टोरियली, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक है, इसके सेंटर पर, जो कि कॉमन है। ओके, ट्राई दिस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थैंक यू।